टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी का मीडियन डिस्कस करेंगे। यहाँ तीनों सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। एक है इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरी है डिस्क्रीट सीरीज़, देन कंटिन्यूअस सीरीज़। तीनों सीरीज़ का मैं थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दूंगी और थोड़ा समझा दूंगी ताकि मीडियन क्या चीज़ है आपको पता चल जाएगा। मीडियन कुछ भी नहीं है, मीडियन है एक सेंट्रल वैल्यू को ही मीडियन कहते हैं। अगर देखो सोचो, ए लॉट ऑफ observations are there, and though in that observation we have to find out which one is the center value of that series, that you have to find it out. What is median? Median is the central value. कई ऑब्जर्वेशन देते हैं, वही ऑब्जर्वेशन का मिडिल वैल्यू जो है उसको कहते हैं मीडियन। सिमिलरली हम क्या सीखे थे? सेंट्रल टेंडेंसी में पहला क्या सीखे थे? मीन सीखे थे। मीन में क्या है? आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू द मीडियन। मीन में हम क्या कहते हैं? द मीन वैल्यू, आई मीन द मिड वैल्यू वी हैव सीन that should be equally distributed to all the observations. Okay, so that is mean. Suppose let us think one has got 1 mark, second person has got 2 marks, third person has got 3 marks. So total how much? 6 marks, and divided among 3. So 3 2s are 6. Each will get how much? 2 2. Equally we are distributing those marks to each observations. That is the central value. So similarly here median also the central value. Okay, so now central value. So how to reach that central value? Okay, let's see. Start. How to reach that central value? So first what you have to do, keep all the values in a line. Okay, so keep all the values in a line. I mean, what values? That is in a line means in what pattern? In a sequence series. Okay, in a sequence series, either in increasing order or decreasing order. ये फर्स्ट स्टेप है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये है तुम्हारा फर्स्ट। क्या है? ऑल द वैल्यूज शुड बी अरेंज्ड इन इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर और टू आवर दिस थिंग बेटर टू डू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हो गया, पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिए। सो उसके बाद we have to reach to the middle one, the middle most value. that middle sequence को तो अरेंज कर दिए, लेकिन अभी middle most value में कैसा हम पहुंचेंगे? that middle most value is known as what? middle most value is called median. ठीक है। so the middle most value, it is nothing, it depends upon the position value. ठीक है, it depends upon the position. कौन सा पोजीशन? थर्ड पोजीशन या फोर्थ? अगर सोचो 2 5 8 9 10 है, तो ये मिडिल में कौन है? 8 है। so we arrange in an increasing order and we put this 8 is in which position? third position. This one is the median. so this is the what is that? positional average भी कहते हैं। मीडियन को क्या कहते हैं? और मीडियन कहते हैं, नहीं तो मीडियन, और कभी कभी ऐसा भी कह देते हैं पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, मतलब इसको तो ये कैसा हम फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या है, एक इंडिविजुअल सीरीज का एक एग्जांपल देंगे। ये पोजिशनल वैल्यू या मीडियन, द मिडिल मोस्ट वैल्यू, फाइंड हाउ टू रीच दैट मिडिल मोस्ट वैल्यू। सो फॉर दिस वी हैव टू टेक द इंडिविजुअल सीरीज। तो मैं अभी इंडिविजुअल सीरीज का
एक एग्जाम्पल या एक या दो एग्जाम्पल दूंगी। फर्स्ट अगर सोचो हमारा वो दिया है क्या जे some values has given. Let us take this is individual series. Okay, individual series का let us take 5 7 3 9 11 12 then 1 then 2 दे दिया है। ठीक है, ऐसे देख कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर हैज गिवन। सो फ्रॉम दिस वी कांट से ओ 9 9 इधर दिस साइड 3 दिस इज 3 9 is at the middle, so the middle most value is the median, 9 is the median. Then this 2 will get, somebody will say no I will keep this 2 over here, I will be the middle, this 11 will may come here, so 11. So there is a rule is there. First what our duty is to arrange them in a increasing order. 1 2 3 then comes 5 then comes 7 then comes 9 then comes 11. हो गया ना, 3 3 6 7. Now we arrange in a increasing या decreasing order, but here what we did in increasing order. So whatever may be, you increasing order you keep, or in decreasing order you keep it. But what happened, the 5, suppose here what is the middle one, middle value will be 5, so 5 will come in the middle. Let's see, I will say 11 9 7 5 3 2 1. You see this side 3 this side 3, what is that 5. So increasing ऑर्डर में रखने से भी 5 हो गया हमारा मीडियन, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी 5 आ गया। इसलिए कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा टू बी कन्वीनियंट सो ऑलवेज आई डू इन लेट बेटर टू डू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब ये हो गया, अभी ये तो हो गया, अभी हम इधर का 3 इधर का 3 कर दिए, ये क्योंकि ऑड नंबर था। ऑड, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 7 numbers, odd numbers. Suppose if it is a even number like this, suppose this number only I will put 5 7 3 9 11 1 is there. Again we did in a increasing order, 1 5 7 1 then comes 3 then 5 1 3 5 7 9 11. How many? 3 3 6. So it is what, even. So even is 6. So 6 divided by 2 is 3. So third cannot be middle, क्योंकि here 2 and this side 3, या 7 will also this side 3 this side. So हमेशा इवन नंबर में मिडिल में 2 आ जाएंगे। इधर को 2 हो गया, इधर को 2 हो गया, इधर रह गया, बीच में क्या रह गया, दो संख्या रह गया, टू वैल्यूज रिमेन. सो 5 and 7, these two are the medians. So always in even, what 2 values will come as the median. How to take? You have to take the arithmetic mean of these 2 values. That means median will be 5 plus 7 upon 2, that is 12 upon 2 upon 6. No, sorry, 5 plus 7 is 12. So 6 will be the median, not 7, sorry. So that 5 plus 7 is 12, 12 divided by 2, that is 6 will be the median. ठीक है, ऐसा करके निकालते हैं. But that is the sum we can do directly, there is no, and it will come correct, no doubt about it. Suppose if they will say in the examination, if they say do apply the formula, so we have to find the formula. So in that case what we have to do, first let's take the odd number, let's take odd number, that means odd number. ठीक है, odd number माने n will be, n is the odd number of observation will be odd. Let us say this is 7. So odd number के लिए हम क्या करते हैं, 7 cannot be divided by 2, है ना, 7 cannot be divided by 2. Let us say here 7 are 3 4 5 6
7 is there. So we cannot, if we divide by 7, 2 3s are 6, 3 point something. So no, this fourth one will come. How to reach this fourth value? So what we do, for this 7 we add up 1, that will become 8. ठीक है. Now this 8 can be divisible by 2, you get 2 4s are 8. So fourth value is our median आ गया या नहीं, है ना. अगर यहाँ अगर सोचो 2 3 4 6 8 12 3 3 6 and this is 15. So this side 3, this side 3. This is the fourth value. Fourth value, how many our n is what? 1 2 3 4 5 6 7 7. So to find the median, what we did, 7 plus 1 upon 2, that is 8 upon 2, that is 4th. So we reached in fourth value we reached. To reach the median of in odd number, what we found the formula? We found the formula that n plus 1 upon 2th term is the median. समझ में आ गया. ये हम 9th में भी पढ़े थे, फिर भी और एक बार दोबारा मैं वो ब्रश अप करा रही हूँ. ठीक है. ये तो हो गया है ऑड नंबर में. अभी इवन नंबर में, इवन नंबर के लिए हम क्या करें, कोई भी 6 नंबर ले लेंगे. सो लेट अस से अरेंज व्हाट इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख रही हूँ. 15 देन 16 20 25 43 then 51. So here how many numbers are? 1 2 3 4 5 6 numbers are. This is means even number कितने हैं? 6 है. 6 equals to even number. even number. अब how to get it? मिडिल नंबर लाने के लिए हम क्या करें, क्या है, इधर से 3 उधर से 3 करने से नहीं हो रहा है, तो ये दोनों होते हैं हमारा मीडियन होंगे, है ना. इधर 2 हो गया, बीच वाला 2 हो गया, मीडियन हो गया. तो अभी लाने के फर्स्ट सेकंड थर्ड लाने के लिए क्या करें, 6/2 करने से 3 आ गया, वी रीच थर्ड वैल्यू में रीच हो गए. लेकिन फोर्थ वैल्यू में रीच करने होने के लिए हम क्या करें, इसमें फिर 1 जोड़ देते हैं तो फोर्थ वैल्यू में आ जाते हैं. तो फिर इसको हम क्या करते हैं, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 एक जोड़ दिए, फिर उसको डिवाइड बाई 2 करने से हमारा मीडियन आ रहा है. समझ में आ गया. अब देखो थर्ड वैल्यू क्या है, थर्ड वैल्यू 20, फोर्थ वैल्यू इज 25. 20 प्लस 25/2, दैट इज 45/2. 2 2s are 4, 2 2s are 4, 24.5 हो गया. ये भी समझ में आ गया. थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू, n/2 इज थर्ड वैल्यू हो गया, फिर प्लस 1 कर देंगे, फोर्थ वैल्यू हो गया. थर्ड एंड फोर्थ टर्म, थर्ड वैल्यू मीन्स थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म को दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा. ये हो गया इवन नंबर के लिए फॉर्मूला. अभी यहाँ तक समझ में आ गया. दिस इज़ द मीडियन का फॉर्मूला. सो अब सोचो कोई भी संख्या दे दे, इसमें से हम आराम से अगर मीडियन दे दिया, मीडियन दे के नंबर कोई भी एक नहीं दिया, तो वहाँ से हम ये फॉर्मूला डाल के हम आराम से मीडियन का निकाल सकते. ठीक है. अब चलेंगे हम डिस्क्रीट सीरीज़ में चलेंगे. ठीक है. डिस्क्रीट सीरीज़ में अगर सोचो x देता है और f दिया है, डिस्क्रीट सीरीज़ में x देता है और f दिया है. डिस्क्रीट सीरीज़ में हम क्या लेंगे, सोचो 3 ले लिए 1 टाइम, देन 7 ले लिए 2 टाइम्स, देन 9 लिए 4 टाइम्स, देन 5 लिए 4 टाइम्स, 9 लिए 5 टाइम्स. चलो इतना ही ले लिए. ठीक है. ऑड ले लेंगे 1 2 3 4 और यहाँ ले लेंगे 7 2 4 9, ये ले लेंगे 15 ले ले 2 टाइम्स. ठीक है. अब ये है क्या है डिस्क्रीट में. अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम
अगर ये इंक्रीज में नहीं है, हाफाजडली अगर है, ऐसा था अगर सोचो 15 का 15 2 9 5 5 4 3 1 7 2 ऐसा है। तो ये x हो गया, ये f हो गया। इसको हम पहले क्या करेंगे, हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना कैसा, फर्स्ट क्या आएगा, 3 आएगा, ये 3 और ये 1, ये x हो गया, ये f हो गया, 3 हो गया 1, 3 के बाद कौन सा आएगा 5, 5 कितने बार 4 टाइम्स, देन 7 2 टाइम्स, देन 9 5 टाइम्स, 15 2 टाइम्स। तो ये आ गया। तो हम अभी इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेलेक्ट कर दिए। तो ठीक है, इसको हम इंडिविजुअल सीरीज में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो ठीक है, हमारा कितने टोटल वैल्यू 4 1 5 6 7 8 9 10 14 आ गया है ना, 14 आया है। सो 14 आने से इसका n इज व्हाट, ऑड है, 3 4 5, हाँ n इज ऑड, 1 2 3 4 5, n इक्वल्स टू 5, ऑड है। हमारा फार्मूला क्या है, n प्लस 1/2, n इज व्हाट 5 प्लस 1/2, 5 प्लस 6/2, दैट इज थर्ड वैल्यू। ठीक है, सो ये तो थर्ड में हम आ गए। सो हाउ टू रीच दिस थर्ड, how to find out, that is the main thing. So how to find थर्ड वैल्यू या थर्ड टर्म में पहुंचने के लिए हम इसको कहते हैं रैंकिंग। कौन सा रैंकिंग में, ये कौन सा नंबर थर्ड रैंकिंग में है वो हमको देखना है। अब देखो, इसको हम इंडिविजुअल सीरीज में एक्सप्रेस करेंगे। to know this ranking, what we have to do, that we have to take the cumulative फ्रीक्वेंसी। उसके लिए हमको एक नया क्या है, कॉलम बनाना पड़ेगा, उसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको कैसा निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, पहला फ्रीक्वेंसी को जैसा वैसी डाल देते हैं, ये पहला फ्रीक्वेंसी, ये जैसा है ये पहला फ्रीक्वेंसी, ये जैसा को वैसा डाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ओल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ नया फ्रीक्वेंसी ऐड करते करते चले जाएंगे, वो हो जाएगा हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ एक कॉलम नया जोड़ना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड वन मोर न्यू कॉलम, दैट इज व्हाट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो नाउ व्हाट वी हैव टू change, we have to do it. How to do? So 3 3 1 1 cumulative frequency, 5 1 plus 4 is 5, 5 plus 2 is 7, 7 plus 5 is 12, 12 plus 2 is 14. Here also 14 and here also 14. Cumulative frequency, number of n is equals to cumulative frequency, same will come. So how to find out the third value? So what we shall do, 3 is how many times repeated, only one time, so let's write 3. Then comes 5, how many times, 4, then 5 5 5 5 4 times कर दिए। फिर 7 कितने बार, 2 बार, 7 7। फिर 9 कितने बार, 5 बार, 1 2 3 4 5 हो गया। फिर 15 कितने बार, 2 बार। देखो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, हमारा 14 ऑब्जर्वेशन से ठीक से हो गया। अभी ये है फर्स्ट पोजीशन में है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, लाइक दैट द रैंकिंग में all these numbers are there. In third ranking, what is our third term? So this is first rank, second से लेकर, फर्स्ट तो हो गया 3 हो गया, सेकंड से लेकर 5, सेकंड से लेकर फोर्थ तक हमारा 5 है। ठीक है, सेकंड से लेकर फोर्थ तक हमारा 5 है। तो सेकंड, सॉरी हाँ, फर्स्ट हो गया तो वो हो गया, सेकंड से फिफ्थ 5 तक लेंगे हमारा 5 है। जैसा 2 3 4 5 रैंक तक हमारा 5 है। सिर्फ फिर 7 कहाँ तक है,
5 से लेकर 7, दैट मीन्स फ्रॉम 6 आफ्टर 5 6 and 7 will become our 7. Then 12th, ठीक है, और 12th रैंक में कौन सा 8 से लेकर 12th तक हमारा 9 है, 8 से लेकर 12th तक हमारा 9 है। देखो 8 से लेकर 12th तक हमारा 9, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th 9th 10th 11th 12th तक हमारा। और 13 15 है, 13 में भी 15 है, 14 में भी 15 है। तो हमको अगर पूछेगा थर्ड अगर आया तो हम क्या कहेंगे, थर्ड आने से हमारा 5 होगा, फोर्थ आने से भी 5 होगा, फिफ्थ आने से भी हमारा 5 होगा। अगर सेवन्थ कहेगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है 5 to 7, 6 से 7 तक है, ये है 7 हो जाएगा। अगर 10th रैंक निकालो कहेगा, 10th अगर हमारा 10 आया, सोचो हाँ क्या है मीडियन 10 आया, n इक्वल्स टू 10 आया, तो 10 होना 10 कहाँ है, ये 5 to 7 तक 7 आया, 7 to 12 तक 9 है, 8 भी 9 है, 9 भी 9 है, 10 भी 9 है, 9 ही होगा। देखो 10 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th rank also 9 है। You got it? So this is the way the community frequency has been formed. Then second term if they say it is 5, fifth term if they say this is up to 5, this is 5, then seventh term if they say 7, sixth term if they say 7 only, 10th term if they say 9 only, 11th term कहने से भी 9 ही होगा, ठीक है। 7 से लेकर 12 तक 9 होगा, और 13 से लेकर 7 से नहीं 8 से लेकर 12 तक 9 ही होगा। फिर 13 से लेकर 14 तक हमारा क्या है 13 से लेकर 14 तक हमारा हो गया 15 हो गया। 13 भी 15 है, 14 भी 15 है। देखो 13 15 14 15, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 13 भी 15 है, 14 भी 15 है। अब समझ में आ गया कैसा निकालते हैं। अब तो अभी समझ में आया ना। अभी हम करेंगे सेकंड एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल ये इवन में है। सेकंड एग्जाम्पल में अगर x और ये f है, अगर अभी तो ऑड नंबर लिए, अभी इवन नंबर लेंगे। सोचो ये ले लेंगे 28 कितने बार 9 टाइम्स, 30 कितने बार है 2 टाइम्स, एंड 20 ले लेंगे 3 टाइम्स ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 17 लेंगे 7 टाइम्स, 1 2 3 4 ही ले लेंगे, ठीक है। ऐसा ही 4 इवन नंबर ले लिए। इवन नंबर लेने से पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसा है, x एंड f। x इज फर्स्ट सबसे छोटा 17 7, देन कम्स 20 ये 3, then comes 28 9, and this comes 30 and 2. तो 17 how many times, 7 times, 1 2 3 4 5 6 7। अभी मैं पहले इसको इंडिविजुअल उसमें सीरीज में रख दूंगी। फिर 22 टाइम्स 20 20 20 3 टाइम्स सॉरी, देन 28 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 हो गया। फिर 30 को 2 बार 30 30। तो अब हमारा क्या है इसमें कम्युनिटी इसको तो हम अरेंज कर दिया। अब इसको हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लाएंगे। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लाने से ये हो जाएगा 7 7 + 3 इज़ 10 हो जाएगा। अब इसको मिटा देंगे, ठीक से लिखेंगे इसको, 28 को उधर कर देंगे। तो यहाँ एक 28 कमी था, 28, ठीक है। तो अभी 7 + 3 इज़
10, 10 plus 9 is 19, 19, 20, 21. ठीक है. So now total is 21. Now what is our n? N is ours. N is how many? 4. So what is our value? So n upon 2 एक होगा, टर्म एक होगा, प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म होकर फिर हाफ कर देते हैं. दैट इज़ आवर मीडियन होता है. मीडियन होता है तो n क्या है? 4. 4 ये 4 अपॉन 2 2 हो गया. सो प्लस 2 प्लस 1 इज थर्ड टर्म अपॉन 2. ठीक है. सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अपॉन 2 करने से हमारा मीडियन आ गया. अभी सेकेंड टर्म क्या है भाई? तो ये फर्स्ट से लेकर 7 तक क्या है? 17 है. ये हमारा सेकेंड टर्म. ठीक है. और थर्ड टर्म क्या है हमारा? थर्ड टर्म कौन सा है? फर्स्ट से लेकर थर्ड टर्म आल्सो 17. सो 17 प्लस 17 अपॉन 2 that is 34 upon 2. That is 17 our what? 17 our median. ठीक है. ठीक है. ठीक है. n upon third term plus third term and fourth term. Third term and fourth. n is what? Second plus third. थर्ड फोर्थ नहीं, सेकंड और थर्ड. सेकंड ये है हमारा, थर्ड भी यही है, इसलिए दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिए. ठीक है. इवन होने से ऐसा करते हैं. तो फिर अब डिस्क्रीट वाला चलेंगे. डिस्क्रीट वाला हो गया. अब चलेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में चलेंगे. तो कंटिन्यूअस सीरीज में इट इज़ डिफरेंट. It is different from individual and discrete series. It is different from individual and discrete series. For this what? The median has got a formula. पहले मैं formula लिख दूँगी, n upon 2 minus CF upon F into height. ये है हमारा मीडियन का फॉर्मूला. ये L क्या है? L होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ दैट, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. अभी मीडियन क्लास कैसा वो मैं समझाऊंगी. मीडियन क्लास. फिर n अपॉन 2 तो हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 है ना. टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं. तो फिर f इज़ वाट? f इज़ आवर फ्रीक्वेंसी है ना. n अपॉन 2 क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी. n इज समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हो या समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं. फिर देन f इज़ आवर फ्रीक्वेंसी है ना. f इज़ आवर फ्रीक्वेंसी हो गया. और cf क्या है? cf होता है अपर. cf कौन सा लेते हैं? अपर cf लेते हैं. जो CF है एक्चुअली उसका ऊपर वाला लेते हैं, अपर CF लेते हैं. H क्या है? द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल का क्लास इंटरवल हो गया तुम्हारा हाइट हो जाता है. ठीक है. अब समझ में आ गया. अब हम करेंगे इसको लेकर हम कुछ सम्स करेंगे. ठीक है. फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेलेक्ट. What we have to select? We have to find out the class. फिर first we have to select class. क्लास को सेलेक्ट करना है. उसका कैलकुलेट क्या है? n अपॉन 2 करके निकालते हैं, तब जाकर सेलेक्ट. अगर जो आया तो उसके बाद होता है मीडियन में. अब तुमको पता चल जाएगा क्या f क्या है, l क्या है, सब इसी सम्स में आराम से हमको फॉर्मूला को पता चल जाता है. देखो ये हो गया मार्क्स मतलब हमारा x हो गया. ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गया फ्रीक्वेंसी. 0 to 10 मार्क्स कितने बच्चों का आया? 5 मार्क्स आया. 10 to 30 मार्क्स कितने? 15 बच्चों का आया. 30 से 60 कितने बच्चों को? 30 बच्चों का आया. 60 से 80 कितने बच्चों का आया? 8 बच्चों का आया.
80 से 90 दो बच्चों को आया है, ये हो गया। तो ये एक्चुअली ये टेबल जो दिया है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में देते हैं आपको, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन ये देखो ये वर्थ जो है यहाँ वर्थ ढंग से नहीं है। द क्लास इंटरवल्स आर नॉट equal. You see 0 to 10, how many, what is the difference? 10. 10 to 30, what is the difference? 20. Width is 20. Here 30 to 60, 30. 60 to 80, again 20. 80 to 90, 90 minus 8 is 10. So here width is not same. They are not equal. In median, if the width is not equal, you don't bother. Just you do it. But whether it is continuous or discontinuous, that only you have to see. But here it is continuous, upper limit is here lower limit, here upper limit is lower limit, upper limit यहाँ lower limit हो गया, इसका upper limit इसका lower limit, continuous है, so width you don't bother. Okay, now let's see here the width class intervals is not equal. Now let's find out the cumulative frequency. Cumulative frequency क्या है? पहले ये 5 को 5 ही डाल देंगे, फिर 5 + 15 इज 20, 20 + 30 इज 50, 50 + 8 इज 58, 58 + 2 इज 60. और हमारा n क्या आया? n इक्वल्स टू n इज व्हाट? समीशन ऑफ fi that equals to 60. Okay, now this has come. Now what I said here, our n is what? 60. Then we have to find out n upon 2, 60 upon 2, that is our 30. ठीक है, अब इसको हम CF लिखें. CF क्या है? इसका n 30 आ गया. अब हम इसको f क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारे हमको डिसाइड करना पड़ेगा. तो अभी n upon 2 विल टेल द मॉडल क्लास, है ना. यहाँ मैंने बताया था n upon 2 will decide, है ना, क्लास सेलेक्ट हो सकता है. सो हियर इज 30. सो 30 इज जस्ट अबव फ्रॉम द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज दैट? 20 से ज़्यादा कौन है? 30 यहाँ है. दैट मीन्स 20 से, है ना, अप टू 5, 0 to 10 मार्क्स है. फिर 5 से लेकर 20 तक सबको 10 से 30 बच्चे, 15 बच्चों का आया. फिर 20 से लेकर 50, 21, 22, 23, 24 लाइक दैट 50 तक आया है. कितने बच्चों को? 30 तक आया है. कितने बच्चे, कौन सा मार्क? 30 से 60. सो आवर 30 विल लाई बिटवीन हियर ओनली दिस क्लास मॉडल. से 60 तक. ठीक है. द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यू विल राइट व्हाट? बेटर आई एम टेलिंग हियर, द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी is just greater than n upon 2. That is how much? 30. So, is how much? Is what? That is where what? 50 है. कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 है. दिस 50 इज जस्ट ग्रेटर देन 30, है ना. ये 50 है, ये है 50, है ना, जस्ट ग्रेटर देन 30. सो 50 हम ले लिए. राइट. अब चलेंगे नेक्स्ट सारे फॉर्मूलास करने के लिए. फिर अब लिखेंगे L हो गया हमारा, ये है. तो L क्या हो गया? L हो गया 30, H हो गया, ये दोनों के 30, 60 से 30 जाएगा तो कितना? 30. H इक्वल्स टू 30 और F, दिस वन विल बिकम आवर F एंड दैट इज, दिस इज आवर F. इसका ऊपर वाला जो होगा ये CF, अपर क्लास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, अपर वन, अपर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, ये 20 हो गया. ठीक है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हो गया 20. राइट. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो फॉर्मूला डालें. मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. दैट इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू
मीडियन। एल क्या है हमारा 30, n/2 क्या है 30 माइनस सी एफ क्या है 20/f क्या है 30 इंटू हाइट क्या है, हाइट also 30, so 30 gone here, 30 plus 30 minus 10 that is 40 is our median। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे, क्या है, अगर डिसकंटिन्यूअस तो उसको हम क्या करेंगे, चेंज करना पड़ेगा हमको। क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव्स में चेंज करते हैं। इंक्लूसिव अगर सीरीज़ दिया है, हमेशा इंक्लूसिव सीरीज़ अगर दिया है तो हमेशा उसको चेंज करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। ये सेकंड टाइप ऑफ सम है, IES। आरडी का एग्जाम्पल 4 का हम कर रहे हैं। ये है इंक्लूसिव सीरीज़ है, इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी इंक्लूसिव सीरीज़ को हम लिख लेंगे, ठीक है। 60 क्या है 62, 69, देन 72, 79, 82, 89, then 92, 99, then 102, 109, then 109 to 109 no 110, 110 to 119 है। ये दे दिया हमारा वीकली वेजेस दे दिया। फिर अब ये है नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज क्या है, ये 5 और ये 15, ये 20, ये 30, ये 20, ये 8 है। तो ये है, देखो ये क्या दिया है इंक्लूसिव सीरीज़, क्योंकि 60 to 69, फिर ये 69 शुरू नहीं हुआ, ये 70 सीरीज है। इन दोनों का गैप क्या है 1 है, 70। इसको कंटिन्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे, इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करें। कैसा करेंगे, दोनों का वैल्यू क्या है 60 और 60 से 69, यहाँ 70 है, तो 70 माइनस 69/2 दैट इज़ 1/2 दैट इज़ 0.5 है, 5 है। तो 5, तो फिर क्या करेंगे, ये 5 को लोअर लिमिट से माइनस 0.5 करोगे, ठीक है, और अपर लिमिट से प्लस करोगे, 0.5 को प्लस कर, लोअर लिमिट माइनस 0.5, अपर लिमिट प्लस 0. तो अभी लोअर लिमिट इसको -5 करो, सो अभी ये वीकली वेजेस दैट इज x हो गया, और ये है नंबर ऑफ डेज, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, देन कम्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब देखो x, इसको क्या करेंगे 59.5 to 69.9, ठीक है, 0.5 हमारा 69.5, ये हो जाएगा 69.5 से ये हो जाएगा 79.5, 0.5 ही ऐड करेंगे यहाँ, फिर यहाँ 0.5 माइनस कर देंगे, 79.5 से ये हो जाएगा 89.5 से ये हो जाएगा 89.5 से ये 99.5, ये हो जाएगा 99.5 से ये हो जाएगा 99.5 से ये 109.5, ये 109.5 से 5, 15, 20, 30, 20,
8। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको एज इट इज़ लिख देंगे, इसको ऐड कर देंगे। 5 + 15 इज़ 20, 20 + 20 इज़ 40, 40 + 30 इज़ 70, 70 + 20 इज़ 90, 90 + 98। ये हमारा n हो गया, n या समीशन ऑफ f हो गया, ये 98 हो गया। ठीक है, ये समीशन ऑफ f हो गया। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट पेज में सॉल्व करने के लिए। तो अब हमारा क्या है, n = हाउ मच, 98, n/2 = 98/2, 2 4s are 8 to 49. Now we have to see which is greater, 49 से ज़्यादा कहाँ है, इस ग्रुप में है, से ज़्यादा, 40 से ज़्यादा है, 49 इसमें आ रहे। सो ये हमारा हो जाएगा CF, ये हमारा हो जाएगा CF, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा लोअर लिमिट, ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे इसमें L is 89.5, L is median = L plus n/2 minus CF/F into H. L is what? L is how much? 89.5. 89.5 plus this is 49 minus CF is how much? CF is 40. CF is 40 upon F is 30. F is 30. Height is how much? Height is 89.5 से माइनस करें, 99.5 से 89.5, 99.5 से 89.5, 10 हो अब गया। अभी ये हो गया 89.5 प्लस ये 9/3, तो 3 दैट इज़ 92.5। ठीक है, तो इसके बाद वो रह गया हमारा अगर एक्सरसाइज दे दिया फिर उसका क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, वो एक सम रह गया। मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहने से तुम्हारा मीडियन ख़त्म हो गया। मीडियन के 2 टाइप है, एक इंक्लूसिव देगा तो एक्सक्लूसिव में चेंज करोगे, अगर एक्सक्लूसिव दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एज इट इज़ तुम कर सकते हो। इंक्लूसिव देने से उसको चेंज करना, इसीलिए मैं ये करा। एक्सक्लूसिव दिया तो कर लोगे, इसलिए वो सम मैंने करवाया नहीं है। और डिफरेंट क्लास विड्थ विल बी डिफरेंट, देन इट डजंट मैटर। ओके, दिस 2 थिंग्स। एंड सेकेंड देन मिसिंग फ्रीक्वेंसी 1, मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी आ सकता है, वो करा देंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच बाय वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।